Good morning, students. Welcome to you all in chemistry class. Numerical based on percentage composition. First numerical, calculate the percentage of water of crystallization in the given sample of blue vitriol. Yes. Suvir Duggal ji. यस मैम। मैम सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने के लिए मासेस लिखेंगे कि वाटर का कितना डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। मैम वाटर का मेरा 900 है। सॉल्व कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल molecular mass of copper sulfate 5H2O. CuSO4. मैम 3.607 है आंसर। 1 into 63.5 plus 1 into 32 plus 4 into 16 plus 5 into 18. 63.5 plus 32 plus 64 plus 90. 249.5. Okay? यस मैम। हाँ जी। मैम फिर मैं उस डेसिमल को ऊपर ले गया तो 900 बाय 2495 इंटू 100 हो गया तो 36.07% आ गया। Yes, Garav. Yes, ma'am. 36.8%. Percentage of water solve करवाइए बच्चे। 90 upon 249.5 into 100. 90 divided by 249.5 into 100. And the answer? 36.8%. 36.07%. Next is calculate the percentage of carbon, hydrogen, and oxygen in ethanol. Calculate percentage of carbon, hydrogen, oxygen in ethanol. Yes, Harnoor Singh. यस मैम, पहले हम इथेनॉल का मैम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। Yes, what is the formula of ethanol? C2H5OH. Very good. मैम फिर हम 12 into 2 24 में मासेस करेंगे। 12 into 2 24 plus 5 molecular plus mass 16. Of Harnoor, what is the molecular mass of ethanol? C2H5OH. मैम वो भी फाइंड करना है। 2 into 12 plus हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6 6 into 1 plus 1 into 16 24 plus 6 plus 16 is equal to yes or no? Yes ma'am, 46. 46. Now percentage of carbon. मैम परसेंटेज ऑफ कार्बन पहले इसमें C2 है तो फिर 12 into 2 24 upon 46 into 100. Okay. Then percentage of hydrogen. मैम इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं 6 तो फिर इसमें हम लिखेंगे 6 upon 46 into 100. Okay. Then ऑक्सीजन मैम इसमें ऑक्सीजन के सिर्फ 1 है तो फिर 16 upon 46 into 100. मैम फिर कार्बन का आएगा 52.17%. okay. Hydrogen. मैम हाइड्रोजन का आएगा 10.86. चेक कीजिए बेटा। यस
13.04 आया है उसका हाइड्रोजन का। 13.04, ओके। यस मैम, और मैम इसमें ऑक्सीजन का है, इसमें हम 16 डिवाइडेड बाय 46 में कर देंगे और आंसर आएगा हमारा 34.78। राइट। यस मैम। Percentage composition is clear to you all? Next topic of your NCERT book. Next topic of your NCERT is empirical and molecular formula. The formula of compound is a chemical formula which express whole number, simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of compound. और molecular formula क्या होता है? Molecular formula of a compound is the chemical formula which represent the true formula of its molecule. It expresses the actual number of atoms of various elements present in one molecule of compound. For example, C6H12O6, glucose. ये क्या इसका molecular formula. Actual number of atoms of various elements present in one molecule of compound is a molecular formula. अगर हम इसको simple ratio में लिख दें तो क्या हो जाएगा? C1H2O1 means CH2O. It's an empirical formula. Note on the definition and example. Numericals based on it. First statement देखिए क्या है? Yes, Gurleen Channa, read the statement. Inorganic salt gave the following percentage composition. Sodium is equal to 29.11, sulfur is equal to 40.51, and oxygen is equal to 30.38. Calculate the empirical formula of the salt. Write down the numerical in your notebook. An inorganic salt having the percentage, sodium की percentage कितनी given है? 29.11, sulfur 40.51, oxygen 30.38. Now, what are the various steps to calculate the empirical formula? Start writing. First, आपने क्या लिखना होता है इसमें? Symbols and percentage of element. एक टेबल बनाते जाइए. First step. Element sodium, sulfur and oxygen. सबने लिख लिया इतना? Then the next symbols लिखेंगे आप, सोडियम Na, सल्फर S, ऑक्सीजन O. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे परसेंटेज 29.11 सोडियम, सल्फर 40.51, ऑक्सीजन 30.38. नेक्स्ट आपने लिखना है इनकी एटॉमिक मास. Atomic mass of sodium 23, sulfur 32, oxygen का atomic mass 16. Next column में आप लिखेंगे atomic mass. Atomic mass sodium में कितना होता है? 23, sulfur 32, oxygen 16. 4 column सबने बना लिए नोटबुक पे. Next step क्या होता है कैलकुलेशंस के लिए?
कि आपकी जो परसेंटेज है आपने डिवाइड करना है उसको एटॉमिक मास के साथ. डिवाइड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 29.11 divided by 23, 1.266. Then सल्फर के लिए 40.51 divided by 32. डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.266. Then 30.38 divided by 16, 1.897. कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बेटा एक बार. चेक द कैलकुलेशंस. Then the next step, simplest molar ratio. अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1.266. तो आपने डिवाइड करना है 1.266 को, पहले 1.266 के साथ आ जाएगा 1, देन अगेन 1, देन 1.897 डिवाइडेड बाय 1.266 हो जाएगा 1.5. अब आप 1.5 एटम तो लिखोगे नहीं ना, तो आप इसको होल नंबर में करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, देन 2, then 2. Sodium 2, sulfur 2, and oxygen 3. Na2S2O3. Answer is Na2S2O3. Now next is how to calculate the molecular formula. अब आपने molecular formula solve करना है. Molecular formula is equal to, यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेप पे, molecular formula is equal to n into empirical formula. अभी n क्या है? What is this n? n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी आपका फॉर्मूला आ गया, फॉर एग्जांपल CH2O, जैसे आप मोलिकुलर मास सॉल्व करते हो ना, वैसे ही अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सॉल्व करते हो. फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अगर आपने मोलिकुलर फॉर्मूला सॉल्व करना है, फर्स्ट हम एम्पेरिकल फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे. ओके. सेकेंड स्टेप क्या होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सॉल्व करेंगे, जिस तरह से आप मोलिकुलर मास सॉल्व करते हो. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. जिस तरह से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. नेक्स्ट हमें वैल्यू n की सॉल्व करनी है. n इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. मोलिकुलर मास हमें गिवन होगा, ठीक है. उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे मोलिकुलर फॉर्मूला. मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं. So write down this statement in your notebook. Sachneet Kaur, read the statement. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? Okay, start करते हैं. फर्स्ट स्टेप लिखिए अपनी नोटबुक पे. एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन. देन सिंबल्स कार्बन,
C, हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl। नेक्स्ट अपने कॉलम में लिखना है परसेंटेज जो गिवन है न्यूमेरिकल्स में। कार्बन 24.27, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है 4.07, क्लोरीन गिवन है 71.65। You all know the atomic mass। कार्बन का atomic mass कितना होता है 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5। ये 4 कॉलम सबको क्लियर। नेक्स्ट आपने लिखना है अपने परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास के साथ। चेक कीजिए कि जो मैंने स्लाइड पे लिखा वो ठीक है। कैलकुलेशन चेक कीजिए बेटा। 24.27 डिवाइडेड बाय 12 ये हो गया 2.02। नेक्स्ट स्टेप 4.07 डिवाइडेड बाय 1 4.07, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 ये हो गया 2.02। ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। यहां तक सबको क्लियर? ओके, देन द नेक्स्ट simplest ratio, (2.02) divided by 2.02 smallest term यही है is equal to 1, then 4.07 divided by 2.02 क्या हो गया 2, then 2.02 divided by 2.02 1। यहां तक नोट कर लीजिए बेटा जी। इतना सबको क्लियर है? इट मीन्स नाउ C1 H2 Cl1 CH2 Cl, ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया। अब हमें सॉल्व करना है मोलिकुलर फॉर्मूला। आपने कहा मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस N? मास। मोलिकुलर मास हमें गिवन है 98.96। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब ये फॉर्मूला क्या है? CH2Cl। CH2Cl means 1 into 12 plus 2 into 1 plus 1 into 35.5। ऐड करके बताइए कितना होगा? यस गुरशरण। मैम 30 ग्राम। नो मैम नो। यस क्रिश। 49.5 49.5। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। Okay, now N is equal to molecular mass 98.96 divided by 49.5। आप कह रहे हैं मैम यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 into CH2Cl।
आपने आगे 2 नहीं लिखना है, आपने इसको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है। आपने इसको किस तरह से लिखना है नोट कीजिए, C2H4Cl2। कई बुक्स में बड़े इस तरह से भी लिखा हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, बोथ आर राइट। आंसर इज C2H4Cl2। Next numerical, a substance was found to have the percentage potassium 31.84, Cl percentage कितनी गिवन है यहाँ पे 28.98, oxygen 39.18. Calculate molecular formula if its molecular mass is 122.5. सॉल्व कीजिए बेटे इसको। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप मुझे सॉल्व करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे सुखरीत जी। ओके सुखरीत, First of all, we write the elements. So potassium, chlorine, and oxygen. We see, and its percentage 31.84, and chlorine की 28.98, and oxygen की 39.80. हितेन जी, यस हितेन बोलिए। Cl परसेंटेज गिवन। मैम यस मैम, परसेंटेज क्लोरीन 28.98% and percentage of oxygen 39.18%. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास Atomic mass 39, chlorine 35.5, oxygen 16. ओके राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करेंगे इनको, डिवाइड करके 31.8. डिवाइड कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट स्टेप कौन कंप्लीट करवाएगा? मैम 0.81% पहला वाला। 0.81 अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं हम। हाँ। आगे आगे 6 भी है। हाँ जी आगे नेक्स्ट बेटा। ओके गुरलीन चाना। मैम क्लोरीन की आ जाएगी परसेंटेज 0.81 ओके और ऑक्सीजन की आ जाएगी 2.45। 4 5 ओके। नेक्स्ट स्टेप जी कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पे तो 1 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। यस हितेन। मैम यहाँ पे 3 मैम यस 3 हो गया। तो मैम यस बेटा जी बता दीजिए आंसर क्या हो गया? मैम फिर इम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? KClO3 KClO3 ओके। देन हमें क्या सॉल्व मैम करना फिर है? इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास गिवन है। मैम ये गिवन है, मॉलिक्यूलर मास 122.5। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बता दीजिए। मैम कैलकुलेट कर रहे हैं 39 करिए। प्लस 35 प्लस ये सिथेन सॉल्व करके बताइए। मैम 122.5। सेम है। मैम यस सेम है। 39 plus 35.5 plus 48 ओके 1
22.5. Okay, right? Then the next step. मैम फिर n is equals to molecular mass upon empirical formula mass. Same है. 122.5. मैम यस मैम 1 आ जाएगा. मैम molecular formula भी सेम Okay. Molecular. जो empirical formula. Right. Molecular formula is equal to n into empirical form n into empirical form. n की वैल्यू कितनी आ गई? 1. 1. KCl. मैम KCl3. नाम बताएंगे 3 KCl3 का? मैम पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट is